Hello bachcho, how are you all? I hope you all are doing fine. Let's start the new chapter, our mineral resources. Dive in, what would happen if the world be like without petroleum? सोचिए, अगर संसार में पेट्रोल ना हो तो क्या होगा? Lesson view, types of minerals and conserving mineral sources के बारे में आज आप जानने वाले हैं. Are you ready to start? Let's start. The process of mining involves digging the earth at suitable places to take out the minerals. So जो mining process होता है, जो हम लोग बड़ी बड़ी खाने धरती के अंदर खोदते हैं एक suitable place पर जहाँ हमें पता है कि यहाँ minerals हैं, उस process को mining बोला जाता है. We use many articles in our daily life which are made of metals like iron, copper, aluminium, silver or gold. These metals are derived from minerals. Minerals are the resources which are found under the earth's surface, जो धरती के नीचे पाए जाते हैं. The land is dug deep and big ditches are made to take out the minerals. बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं, deep गड्ढे खोदे जाते हैं इन minerals को निकालने के लिए. The big ditches under the surface of the earth from where these minerals are taken out are called mines. उन्हीं को mines कहा जाता है. राइट जो बड़े बड़े गड्ढे खोदे जाते हैं जहाँ से मिनरल्स निकालना होता है उन्हीं को माइंस बोला जाता है. डिगिंग आउट मिनरल ओर्स फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग. इस तरीके को माइनिंग बोला जाता है. अ माइन वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ विच इज नॉट कवर्ड फ्रॉम अबव इज नोन एज ओपन पिट. एन ओपन पिट फ्रॉम विच स्टोन इज obtained is called a quarry. Sometimes a deep bore is made for digging mineral ores. Mineral oil is taken out from the deep oil wells by digging a deep bore. A deep boring के बाद हम उस कुएं में से oil wells जो होते हैं, जो कुएं होते हैं तेल के, उसमें से हम लोग minerals oil निकाल सकते हैं. This process is not drilling. Oil rocks on the surface of the earth have minerals. A rock which is rich in one mineral is called the ore of that mineral, and minerals are very useful for human beings. They are modified according to various factors and industries. So minerals भी factories में भेजे जाते हैं उनको modify करने के लिए industries में भेजे जाते हैं. Types of minerals, there are over 5,000 different minerals, over 5,000 on the basis of composition. Minerals are classified mainly as metallic and non-metallic minerals. दो parts में divide होता है. पहले metallic minerals के बारे में पढ़ते हैं. These contain metals in a raw form. Iron, manganese, aluminium, copper, silver, etc. are some examples of metallic minerals. Some of the important metallic minerals are listed and described below. कुछ ऐसे metallic minerals हम list किए हुए हैं जिनके बारे में अब हम describe करने जा रहे हैं. First one is iron. This is used for making many things in daily use. आप देखते होंगे लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं. It is used for making utensils, tools, machines, bridges, coaches, railway engines, automobiles and ships. कितना सारी चीज़ें लोहे से बनाई जाती हैं. And it is also used in the construction of houses. Yes, घर भी बनाए जाते हैं इससे. India has large deposits of good quality iron ore. बहुत सारी iron ore की यहाँ पे खाने हैं. Copper. This is the first metal used by man. It is mostly found in Rajasthan and Jharkhand. ये दो जगह पर ज़्यादा पाया जाता है. There are many uses of copper. It is combined with nickel to make an alloy which is used in shipbuilding. Ship बनाने के भी काम आता है. Copper is used for making wires, जो आप वायर देख रहे हैं. Door knobs के काम आता है. Utensils बनाने के, coins बनाने के काम आता है. Now gold. It is used to make jewelry, medallions and coins. आप देखते हो मेडल्स भी बनते हैं इसके, ज्वेलरी बनती है. इट इज़ अवेलेबल इन इंडिया इन फ्यूअर क्वांटिटीज़. थोड़ी ही क्वांटिटी में होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए बहुत कीमती होता है ये. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, जो कि डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं. सोने के दांत बनाए जाते हैं. नाउ कोलर इन कर्नाटका हैज़ सम डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड. जो कोलर प्लेस है कर्नाटका में, यहाँ पे बहुत सारी गोल्ड की डिपॉजिट्स हैं. दीज गोल्ड माइंस आर अमंग द deepest in the world, which makes mining of this mineral a very expensive process. Manganese, this is a raw material which is used in
smelting of iron ore and manufacturing alloys. India is the world's 6th largest producer of manganese. 6th largest producer manganese के मामले में. Manganese ore is mined in Karnataka, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा. इन सब में यहाँ पे इसकी खानें पाई जाती हैं. एल्युमिनियम, इट इज़ द यूज्ड फॉर मेक यूटेंसिल्स एंड बॉडीज ऑफ एरोप्लेन्स. जो एल्युमिनियम है उससे जो हमारा एरोप्लेन्स है उनकी बॉडीज़ बनाई जाती हैं, बर्तन बनाए जाते हैं. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम bauxite ore. Aluminum is used in packaging, drinks, can, foil wrapping, bottle tops and foil containers. So आप देखते हो हमारी जो foil wrapping वाले उसमें भी ये यूज़ होते हैं, पैकेजिंग में यूज़ होते हैं. जो ड्रिंक कैंस बनाई जाती हैं उसमें भी एल्युमिनियम का यूज़ होता है. बोतल की टॉप्स भी एल्युमिनियम की बनती हैं. इंडिया रिजर्व्स द बॉक्साइट आर 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड एंड एल्युमिनियम इज़ मोस्टली फाउंड इन कहाँ का? बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र. राइट. नॉन मेटेलिक, अब नॉन मेटेलिक की बात कर लेते हैं. ये मिनरल्स जो हैं वो these are those which do not yield new products on melting. They are also called fossil fuel. Coal, petroleum and natural gas इसके एग्जाम्पल हैं. ठीक है. कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये सारे नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं. and these are some of the important non-metallic are listed and described. जो अब हम इनके बारे में डिटेल में बात करते हैं. कोयला के बारे में पहले. कोल, it is formed from trees and plants that lived millions of years ago. जो हजारों साल तक रहते हैं उनसे फॉर्म होते हैं. वर बरीड अंडर द ग्राउंड, जो धरती के नीचे दब जाते हैं उससे ये कोयला बनता है. इट इज़ यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रोड्यूसिंग हीट. आप देखते हो कोयले से कोयला यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए. इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग स्टील के बनाने के लिए भी काम आता है. कोल डिपॉजिट इन इंडिया कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? रानीगंज में है वेस्ट बंगाल में जो कि है, झारिया में है, बोकारो इन झारखंड एंड नेवली इन तमिलनाडु. पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल और लिक्विड गोल्ड. इसे एक लिक्विड गोल्ड माना जाता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड. इट इज़ अ नेचुरल अकरिंग फ्लेमेबल मिनरल ऑयल विच इज़ फाउंड बीनीथ द अर्थ सरफेस. धरती के अंदर पाया जाता है. पेट्रोलियम इज रिकवर्ड बाय ड्रिलिंग वेल्स एट कोल्ड ऑयल फील्ड्स दैट आर लोकेटेड ऑन लैंड एंड इन सी. आप देखते हो ना उसके कुएँ होते हैं, तेल के कुएँ होते हैं जो धरती के अंदर खोद कर जिसमें से तेल निकाला जाता है. इन इंडिया पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर फाउंड इन कहाँ कहाँ? Assam, Gujarat, Mumbai High, etc. The crude petroleum is refined into a large number of products. कौन कौन से? पेट्रोल एक तो जो हम अपनी गाड़ियों में डालते हैं, डीजल, एलपीजी गैस जो हम अपनी रसोई में यूज़ करते हैं, कैरोसिन ऑयल एक्सेट्रा इन पेट्रोलियम रिफाइनरीज. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम. अब नेचुरल गैस की बात करते हैं. दिस इज ऑल्सो फाउंड विद मिनरल ऑयल in some oil fields and it is important source of energy. It is used for cooking, heating and producing energy. Fact file: a fossil fuel is a fuel that is made from the remains of dead plants and animals like coal and petroleum. कंजर्विंग मिनरल सोर्सेज, जैसे हमने इस सब चीज़ों की बात की कंजर्व करने की, जैसे हमने फॉरेस्ट को कंजर्व करने, वाटर, सॉयल, इन सब के साथ साथ हमारे मिनरल सोर्सेज को भी कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है बेटा. द मिनरल्स आर नॉट फॉर एवर, हमेशा के लिए नहीं है बेटा. वंस दे आर यूज दे वी कैन नॉट मेक दैम अगेन. एक बार यूज़ हो गए, जैसे कोयला एक बार यूज़ हो गया तो हम उसे दोबारा थोड़ी ना यूज़ कर सकते हैं. पेट्रोल यूज़ हो गया तो दोबारा थोड़ी यूज़ कर सकते हैं उसे. सो ये हमारे पास हमेशा रहने वाले नहीं हैं. सो दे विल बी एग्जॉस्टेड वन डे. सच रिसोर्सेज शुड नेवर बी वेस्टेड. तो सोचो इसको वेस्ट करने से पहले. वी शुड ट्राई टू फाइंड अल्टरनेटिव रिसोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल इन प्लेस ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम वी कैन यूज़ सोलर एंड विंड एनर्जी. येस, जो हम सोलर और विंड एनर्जी का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हम कोल और इसकी जगह पे उसको यूज़ कर सकते हैं. वी मस्ट प्रोटेक्ट द मिनरल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री एट ऑल कॉस्ट. हमें ज़रूर किसी भी कीमत पर उसे बचाना होगा क्योंकि ये हमारी कंट्री की वेल्थ है बेटा. राइट, आई होप आप समझ गए होंगे. ट्राई दिस नाउ. Collect pictures of various items that are made from different minerals and paste them on a chart paper. Glossary: ditches a long narrow hole that has been dug into the ground
or rock or earth that has metals in it. Mines, deep holes dug to take out the mineral. Oil field areas where oil is found. Minerals, resources hidden inside the earth. Deposits, a large amount of substances that has formed naturally underground. Quick recall बच्चों, minerals are the resources which are found under the earth's surface. The big ditches under the surface of the earth from where these minerals are taken out are called mines. Digging out minerals ores from the earth is called mining. Minerals are very useful for human beings. Metallic minerals contain metals in a raw form. Copper was the first metal used by man. Gold is used to make jewelry, medallions and coins. Manganese is a raw material which is used in smelting of iron ore and manufacturing alloys. Non-metallic minerals are also called as fossil fuels. The minerals are not forever. We must protect the mineral wealth of our country at all costs. Practice time बच्चों, fun time. Tick the correct option. Metals are derived from metallic minerals. Okay. Likewise do all and scramble the letters from the correct box. Bauxite. Okay. Gold. Okay. Fine. Likewise do all. नेम एनी 2 प्लेसेस वेयर आप जहाँ पे आपको कोयल की माइंस हैं, मैग्नीज ओर हैं, जहाँ पे ऑयल रिफाइनरीज हैं, एल्युमिनियम जहाँ पाया जाता है, इनके दो नाम आपको बताने हैं. ठीक है. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आपको इन क्वेश्चंस के आंसर को अपनी नोटबुक में मेंशन करना है इन 2-3 लाइंस. टेक द हेल्प ऑफ योर चैप्टर लाइक माइंस क्या है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या हैं, नेम देम, और मेटेलिक मिनरल्स क्या हैं उनके नाम आपको बताने हैं. आपको सम यूजेस ऑफ कोल लिस्ट आउट करना है और इंडिया में कहाँ हमें ये डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, इम्पोर्टेंस क्या है कंजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्सेज की, तो इनके बारे में बताइए. गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चैप्टर एंड इफ यू फाइंड डिफिकल्टी दोबारा चैप्टर पढ़िए एंड राइट द इंफॉर्मेशन. क्रिएटिव बैग बच्चों, व्हाट ऑल कैन वी डू टू कंजर्व आर मिनरल रिसोर्सेज. तो ये आप क्या कर सकते हैं, आप अभी चैप्टर में रीड करके आए हैं कि कंजर्वेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं. गेट द आइडिया फ्रॉम द इंटरनेट ऑल्सो. सब्जेक्ट इनरिचमेंट पे आपको लिस्ट आउट करना है कुछ आइटम्स को, पुट टिक और क्रॉस अगेंस्ट देयर क्वालिटीज़. आप डोर हैंडल, पेट्रोल, CNG, ज्वेलरी, स्टील प्लेट एंड ग्लास जार, इनको आप कैटेगराइज करें. ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, शाइन्स है या ब्रिटल है, आप इनमें कैटेगराइज करें. सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग, लेबल द गिवन पिक्चर ऑफ अर्थ लेयर. अर्थ लेयर की पिक्चर्स आपको दी गई हैं, इनको आप लेबलिंग करें. Values, the mineral reserves of the earth are limited, so we should use the available resources carefully. Yes, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हमारे पास मिनरल्स के बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए उसे बहुत अच्छी तरह से उसका प्रयोग किया जाना चाहिए. रीच टू टीच, शो टू द स्टूडेंट्स सम ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल. जैसे कि आपने पढ़ा डिफरेंट मेटल्स के आप कुछ प्रोडक्ट उनको दिखाइए और उनसे पूछिए ये किस मेटल से बना हुआ है उस ऑब्जेक्ट को दिखाने के बाद. ठीक है. और इस एक्टिविटी को करते हुए हैव फन, एंजॉय.